Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, once again welcome to our class. In previous class, we have solved 4 questions of practice set 1.3. Today we are going to solve few more questions of practice set 1.3. Fifth question we have to solve now. इस फिफ्थ क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम दिया गया है PQRS, जिस तरह से फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है ट्रेपेजियम PQRS in which side PQ is parallel to side SR. Side PQ is parallel to side SR. What is given in this question? AR is equal to 5 times of AP, AS is equal to 5 times of AQ. And what is asked? It is asked to prove SR segment is equal to 5 times of PQ. अगर जो दिया हुआ है और जो पूछा गया है इसको अगर हम फिगर में देखते हैं, AR, where is it? AR, AP, AS, AQ, ये 4 साइड्स के मुतालिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है. Information regarding these 4 sides are given and information regarding PQ and SR is asked. इससे पता चलता है कि इन दो ट्राइंगल्स के मुतालिक ये सवाल है. ये क्वेश्चंस बिलोंग करता है इन दो ट्राइंगल्स को. फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर. दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम सिमिलरिटी का कोई टेस्ट यूज करते हैं. चलिए देखते हैं. इफ PQ is parallel to SR, then alternate angle should be congruent. This alternate angle Q is congruent to this alternate angle S. PQ is parallel to SR. It is given. Therefore, alternate angles PQA is congruent to RSA. RSA. Similarly, we can take another pair of alternate angles. Another pair of alternate angles. Look here. Angle QPA and angle SRA. Angle QPA is congruent to angle SRA. Also you can take vertically opposite angles. यहाँ पर दो एंगल्स के पेयर्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स के. Therefore, by angle test of similarity can be used here. Triangle PQA is similar to triangle RSA. We proved both triangles are similar. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए. Just take sides PQ first second upon first second. RS is equal to QA upon SA is equal to PA upon RA. Put given values. PQ upon RS
is equal to QA upon SA. QA upon SA or AS is given is equal to 5AK. Put 5AK in place of AS. 5AQ in place of SA. QA will be cancelled. What remains? 1 upon 5. By cross multiplication you will get PQ 5PQ is equal to RS. Here is the answer. Let's see once again. PQ is parallel to SR, it is given. If both sides are parallel, then alternate angles formed in between them will be congruent. First pair, angle PQA is congruent to angle RSA. Second pair of alternate angles, angle QPA is congruent to angle SRA. By angle test, both triangles are congruent. Then their sides will be in proportion. PQ upon RS is equal to QA upon SA is equal to PA upon RE. Let's take two ratios, PQ upon RS and QA upon SA. PQ upon RS, write as it is equal to QA upon SA. SA is equal to 5AQ is given. Put 5AQ in the place of SA. AQ or QA will be cancelled. Remains 1 upon 5. By cross multiplication we will get 5PQ is equal to RS. Here is the answer. Okay. Let's move towards question number 6. Here also a trapezium ABCD is given. Look into the figure. जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, ट्रैपेजियम ABCD यहाँ पर दिया गया है और जिन साइड्स की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर AB दिया हुआ है, AB 20 यूनिट्स, OB दिया गया है 15 यूनिट्स, CD दिया गया है 6 यूनिट्स और क्या पूछा गया है? What is the length of OD? OD कितना है ये पूछा गया। अब इनको भी हम देखेंगे जो सेगमेंट्स की लेंथ दी गई है और जिस सेगमेंट की लेंथ पूछी गई है, these all 4 sides belongs to these two triangles. ये दोनों ट्राइंगल्स के वो साइड्स हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव these two triangles are similar, right? In previous question we have proved. यहाँ पर भी CD पैरेलल है AB के, तो हम यहाँ पर वहीं से शुरू करते हैं। AB is parallel to CD or CD is parallel to AB. It is given in the question. क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसी तरह से फिर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर CDO will be congruent to ABO. Alternate angles, pair of alternate angles. Another pair of alternate angles, यहाँ पर देखिए एंगल DCO and angle BAO. DCO angle is congruent to angle BAO. Here also by angle test of similarity, both triangles will be congruent. Triangle CDO will be similar to triangle ABO.
दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल साइड्स हम किस तरह से लिखते हैं? फर्स्ट टू वर्टाइसेस CD फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड ऑफ अनदर ट्राइंगल is equal to second third vertices DO upon second third BO। तो यहां पर CD दिया गया है, put values given in the question। 6 CD, AB is 20 is equal to DO is asked। DO पूछा गया है, DO is given upon DO is 15। We put values given in the question। जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी होती है, 12 मैंने कहा है, उसको अलोन करना है, पॉजिटिव और न्यूमरेटर करना है। ऑलरेडी ये न्यूमरेटर है, पॉजिटिव है, अब इसको अलोन करना है। डिवाइडेड बाय 15 जो है, इसको शिफ्ट करना होगा टू द लेफ्ट साइड। शिफ्ट 15 टू द लेफ्ट साइड, यू विल गेट 6 upon 20 into 15। on right side remains DO alone। then DO will be equal to, इसको सिंप्लीफाई करना है, 15 3 जा 15 4 जा 6 upon 20 into 50। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। what remains? 3 3 जा 9 upon 2, 9 upon 2 or 5.2। 9 upon 2 means half of 9, that is equal to 5.5 4.5। half of 9 4.5 will be the answer। It was a rough calculation to simplify the fraction। I think you have understood। First, prove both triangles are similar by using angle test। Then take their proportional sides, put given values, make DO alone, simplify the fraction, you will get 9 upon 2, that is 4.5। 9 upon 2 means half of 9, that is 4.5। okay। Let's move towards question number 7 of practice set 1.3। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले दो क्वेश्चन जो हमने देखे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ट्रैपेजियम दिया गया, जिसकी अपोजिट साइड का सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रैपेजियम नहीं दिया गया, बल्कि पैरेललोग्राम दिया गया है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर both pairs of opposite sides are parallel। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स पैरेलल होते हैं। ओके, उसका हमें यहाँ पर यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है यहाँ पर? DE into BE। वेयर इज DE? DE into BE is equal to CE into TE। अगर हम गौर से देखें कि जितने सेगमेंट्स दिए हुए हैं या साइड्स दिए हुए हैं, these sides belongs to these two triangles। ध्यान दीजिए, your attention please। ये दोनों ट्रायंगल्स को बिलोंग करते हैं ये चारों साइड्स।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। That's by proof. अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल होगा डीसी की। ए बी को ही एक्सटेंड किया हुआ है तो ए टी पैरेलल होगा डीसी की। इसी तरह से हम कह सकते हैं सेगमेंट बी टी इज पैरेलल टू सेगमेंट डीसी। BT is parallel to segment DC. It is given. अगर ये पैरेलल हैं तो इनके दरमियान बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये देखिए एंगल B और एंगल C। P D E angle is congruent to D C E angle D C E. Right here reason alternate angles formed in between two parallel lines are always congruent. Another pair of angles you have to find out, congruent angles. आप vertically opposite angles भी ले सकते हैं जो evergreen congruent होते हैं, या फिर alternate angles का दूसरा पेयर ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं vertically opposite angles। ये लेना आपके लिए आसान रहेगा। इस क्वेश्चन में ये देखिए BET एंगल BET is congruent to angle CED. By angle test both triangles are similar. Triangle BET is similar to triangle। देखिए मैंने BET क्यों लिया है, यहाँ पर एंगल B था और यहाँ पर एंगल E था। B को मैंने पहले लिया, E को बाद में लिया सेकंड पर, और रिमेनिंग वर्टेक्स T को मैंने थर्ड पोजीशन पर लिया। B एंगल E देन रिमेनिंग एंगल T ऑफ दिस ट्राइंगल। सिमिलरली यहाँ देखिए B के एंगल B के कॉन्ग्रुएंट एंगल C है, तो हम यहाँ पर पहले लेंगे C, देन वी विल टेक E, C के बाद E लेंगे। इस ट्राइंगल में आप देखिए C के बाद आपने E लिया है, रिमेनिंग एंगल B। Okay, if both triangles are similar, then their sides will be in proportion. BE upon CE is equal to second third ET upon second third ED. Not need to take third ratio. By cross multiplication you will get the answer. BE into ED will be equal to ET or TE into CE. Here is the answer. It was asked to prove. It is now proved. करना क्या था आपने? पैरेलल सेगमेंट जो दिए हुए हैं BT is parallel to DC, it was given, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। उसके बाद हमने
इन पैरेलल लाइंस के दरमियान बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स का हमने पेयर ले लिया। एंगल TBE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE। उसके बाद हमने ले लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से हैं वो? BET इज कॉन्ग्रुएंट टू CED। दो पेयर्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के हमें मिल गए। तो बाय एंगल टेस्ट बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दिखाने के लिए, बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट एंगल B ले लिया, सेकंड E, और उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में हमने ले लिया C और E को फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर, रिमेनिंग एंगल्स को हमने थर्ड पोजीशन पर रखा। इस तरह से उनकी 1:1 करस्पॉन्डेंस कायम रही। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद उनके साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल लिखा। फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड, B upon C is equal to ET upon ED. By cross multiplication you will get the answer. Okay, let's move towards the question 8. 8th क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर भी, और एक चीज यहाँ पर दी गई AP अपॉन CP। AP upon CP is equal to BP upon PD. It is given in the question. ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? AP कहां पर है? यहाँ पर। CP यहाँ पर, यानी इस एंगल का, इस ट्रायंगल का एक साइड और इस ट्रायंगल का एक साइड, इनका रेशियो इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का साइड BP अपॉन इस ट्रायंगल का साइड PD। यानी दोनों ट्रायंगल्स के दो साइड प्रोपोर्शन। टू साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल्स और बोथ ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। दो साइड प्रोपोर्शनल में है। Ratios of two sides of both triangles are equal। तो इसको देखते ही हमारे जहन में, माइंड में एक ख्याल आता है कि यहाँ पर हमें जरूर टेस्ट कौन सा यूज करना होगा जिसमें दो साइड्स का इस्तेमाल किया गया। वो हो सकता है साइड टेस्ट सिमिलैरिटी का, या फिर साइड एंगल साइड टेस्ट। मैंने जिस तरह से लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू इंक से मार्क किया हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दो साइड्स और इनके बीच वाला एंगल, दो साइड प्रोपोर्शन में है और बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज करते हैं। यहाँ पर APB angle is congruent to angle CPD vertically opposite angles। शॉर्ट में लिखा है मैंने VOA vertically opposite angles। इस तरह से दो साइड प्रोपोर्शन में और दो साइड के दरमियान बनने वाला एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये टेस्ट होगा साइड एंगल साइड टेस्ट, जिसकी बिना पर दोनों ट्रायंगल्स ABP is similar to triangle CDP। ये इज द आंसर। ये बड़ा इजी प्रूफ था, क्योंकि यहां पर जो दिया, देखिए आपने फर्स्ट स्टेप जो प्रूफ में लिया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सेकंड स्टेप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का आपने अपने तरफ से डाला है, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, एक्स की शेप में होते हैं वो। और बाकी जो यहाँ पर हम लास्ट स्टेप जो लिखा है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज टू प्रूव। इन्हें दोनों फर्स्ट और थर्ड स्टेप, टोटल यहाँ पर प्रूफ में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट और थर्ड स्टेप क्वेश्चन में ही दिया हुआ है,
Just you have to write second step, that is vertically opposite angles. You will get the answer. तो हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 1.3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. इसी में एक ट्रायंगल और है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए. देखिए, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADC. और दिया हुआ क्या है, इस बड़े ट्रायंगल का एंगल BAC और इस छोटे ट्रायंगल का एंगल ADC, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए गए. क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 two triangles are given and one pair of angles, congruent angles is given. अब यहाँ प्रूव क्या करना है हमें, CA स्क्वायर we have to prove. CA square is equal to CB into CD. तो अगर हम देखेंगे CA कहां पर है, CA एक कॉमन साइड है, बड़े ट्रायंगल का भी साइड है और छोटे ट्रायंगल का भी साइड है CA. और CB कहां पर है, CB बड़े ट्रायंगल का दूसरा साइड है और CD छोटे ट्रायंगल का दूसरा साइड है. इन साइड्स को देखने के बाद अंदाजा होता है कि प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा किसी एक टेस्ट की मदद से. कोई भी एक टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए दोनों ट्रायंगल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, लेट्स सी. एक तो उसने दिया हुआ है BAC angle is congruent to ADC. It is given. Okay, ये दिया गया है. और एक एंगल देख रहे हैं हम, इसमें कॉमन है दोनों में. बड़े ट्रायंगल में भी C एंगल कॉमन है, ये देखिए, और छोटे ट्रायंगल में भी एंगल C कॉमन है. लेट्स टेक कॉमन एंगल. अगर हम बड़े ट्रायंगल के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा ACB. ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू, छोटे ट्रायंगल में ये हो जाएगा ACD. ACD. राइट हियर रीजन, इसका रीजन है कि ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में. अब जाहिर सी बात है वी विल टेक एंगल टेस्ट. बाय एंगल टेस्ट बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर. ट्रायंगल AC, देखिए जिस तरह से मैं बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी आपको, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट एंगल है A, उसके बाद C है, हमने ले लिया A और C. रिमेनिंग कौन होगा इसमें, ABC में A आ चुका है, C आ चुका है. रिमेनिंग एंगल B इज सिमिलर टू ट्रायंगल. दूसरी तरफ देखिए आप, फर्स्ट है एंगल D, उसके बाद एंगल C. ADC में D आ चुका है, C आ चुका है. व्हाट रिमेन्स, एंगल A. तो इस तरह से करस्पॉन्डेंस उनकी कायम है. अब इनके साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाइए. फर्स्ट सेकंड AC अपॉन फर्स्ट सेकंड BC
इज इक्वल टू सेकंड थर्ड CB अपॉन सेकंड थर्ड CA. By cross multiplication you will get the answer. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप जवाब हासिल कर लेंगे। देखिए AC इंटू CA, इसको आप CA स्क्वायर कह सकते हैं। CA इंटू CA स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं CB इंटू BC और CD। Here is the proof. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें जो है हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। उसके लिए हमने एक पेयर तो उसने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का दिया हुआ है, दूसरा पेयर हमने कॉमन लिया। जस्ट यू हैव टू टेक कॉमन एंगल इन बोथ ट्राइंगल्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप आपका, और लास्ट स्टेप भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको ये बीच के सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप आपको बनाना है। कॉमन आपने एंगल लिया हुआ है, फिर दोनों ट्राइंगल्स को आपने एंगल टेस्ट के जरिए सिमिलर दिखाना है, फिर उनके साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप आंसर आसानी से हासिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज हमने पार्ट 2 में बकिया 5 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है, इसको देख लीजिए। और ये तमाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 1.3 के आप अपने नोटबुक में सॉल्व कर लें, यही आपके लिए होमवर्क होगा। इन्हीं तवक्कात के साथ आपका रमज़ान जो है बेहतरीन बीत रहा होगा, और बहुत सारे नेकियां आप अपने लिए कमा रहे होंगे। हमारे लिए और आपके लिए, हमारे भारत देश के लिए, सब पूरी कायनात के लिए आप दुआ कर रहे होंगे। इन्हीं तवक्कात के साथ अल्लाह हाफिज़।